Hello everyone, I am Lalita and you are most welcome. I hope beta you all are fine. And students, today we are going to discuss about our fourth chapter of history of class 10, that is the age of industrialization. And this is the seventh lecture of this chapter. We have discussed 6 chapters in our last videos. If you want to those lectures, watch those videos. In that videos we have discussed about the factories in concept of Europe or in England, and factories come up in India, entrepreneurs, and how Indian entrepreneurs face struggle, or about jobbers, about gomastars. We have already discussed in last videos. Okay, so now we are going to discuss our new topic, that is peculiarities of India industrial growth. Peculiarities of industrial growth means what do you mean by peculiarity? Peculiarity particularly means characteristics those are not usual, means unusual characteristics of industrial growth in India. So basically you know about that the European industries were flourished in India. Okay, and the European agencies of course controlled over the Indian market. And if we talk about Indian market, there were basically we have discussed about three main industries. Those were European industries, and our industrialists, our entrepreneurs faced many difficulties between that. So first of all, if we discuss about the interest of Europeans, this is the first peculiarity of Indian growth. तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स की बात, मर्चेंट्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि उनके इंटरेस्ट क्या थे. एक्चुअली दे वर टेकिंग इंटरेस्ट इन टी एंड कॉफी प्लांटेशन एंड invested in mining, jute cultivation, indigo cultivation, and before it when they were doing the trade with China, and that at that time they were taking interest in opium. Okay, if we talk about interest of Indians, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि जो कॉटन मिल थी, बहुत जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी टोटली कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश, एंड मैनचेस्टर का जो गुड था वो इंडिया में बहुत ज्यादा इंडिया में इंपोर्ट हो रहा था, और जो इंडियन गुड्स थे वो लंदन में या यूं कहे कि इंग्लैंड में वहां पे इंपोर्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पे कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी थी, जबकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कस्टम ड्यूटीज में कंसेशंस ले लिए थे लोकल रूलर से. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट आवर इंडियन मर्चेंट्स, सो इंडियन मर्चेंट्स ने सोचा कि अगर हम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें हम ब्रिटिश को compete नहीं कर सकते, देन दे डिसाइडेड टू invest or to expand the industries of coarse cotton yarn, because coarse cotton yarn की ब्रिटेन को या ब्रिटिशर्स को रिक्वायरमेंट नहीं थी, और कोर्स कॉटन यार्न जो था वो हम अपनी इंडस्ट्रीज के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे, और उन एरियाज में नहीं कर रहे थे जहां ब्रिटिश ने इंडस्ट्रीज लगा रखी थी, हम सेपरेट एरियाज में करने लगे थे. एंड टू एक्सपोर्ट इन चाइना एंड ऑफ कोर्स फॉर इंडिया, तो चाइना में भी एक्सपोर्ट करने लगे थे. हालांकि चाइना में बाद में प्रोडक्शन होने लग गया था, तो वहां का जो हमारा जो वहां हम एक्सपोर्ट कर रहे थे वो डिक्लाइन हो गया था, तो चाइनीज और जापानीज कंपनीज फ्लोरिश हो गई थी जो कि अपने आप प्रोड्यूस कर रही थी यार्न, राइट. देन नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी टेक if we talk about changes affected the pattern of industrialization, how the pattern of industrialization changed, how the pattern of industrialization affected. So what were the reasons क्या थे? For example, if we talk about in late 19th century, so हमने बहुत स्ट्रगल किया कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करें, बट हम ब्रिटिशर्स के होते ये नहीं कर पा रहे थे. और यहाँ पे जो ट्विस्ट आया 1900 से लेके 1912 तक, यहाँ तक जो हमारा प्रोडक्शन था वो डबल हो गया था. तो उसके पीछे क्या रीजन था, इस डबल प्रोडक्शन के पीछे क्या क्या रीजन थे, उनकी बात हम करेंगे. एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है. ओके, सो व्हाट वर द क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी. So first if you talk about Swadeshi movement, you know very well in 1906 Swadeshi movement was spreaded in all over the country, and in entire country, and in Swadeshi movement the people asked for the boycott of foreign goods and adopt the Swadeshi goods, those were produced in Indian
textile industries. Okay. Then merchants came together and demanded for concessions and demanded for tariff protection. What is tariff protection? Tariff protection क्या होता है बेटा? जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हमारे देश को नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर दूसरे कंट्री में हम इम्पोर्ट दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो इजीली हो रहा है इंडिया में, तो हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो बूस्टअप नहीं हो पा रही है, और हम जो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो दूसरे कंट्रीज, इफ यू टॉक अबाउट इंग्लैंड, तो वहां पे कस्टम ड्यूटीज बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि टैरिफ प्रोटेक्शन की डिमांड की, और हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स थे, जो हमारे मर्चेंट्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि टैरिफ प्रोटेक्शन दे, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा जो बिजनेस है वो एक तरह से फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपको पेक्युलरिटी समझ में आ गई होंगी। इसका जो लास्ट पॉइंट है पेक्युलरिटी का, इसमें 2 क्वेश्चंस एग्जाम में बेटा आ सकते हैं, और वो 2 क्वेश्चंस क्या हैं? First of all, how after First World War India, at the time of First World War, Indian industries boomed up. इंडियन इंडस्ट्रीज किस तरह से बूम अप हो गई थी। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये भी आ जाता है कि व्हाई द मैनचेस्टर गुड्स या मैनचेस्टर कुड नॉट टेक इट्स फर्स्ट पोजीशन, यानी कि फर्स्ट पोजीशन मींस अर्ली उसकी जो पोजीशन थी इंडिया में मैनचेस्टर गुड्स की, तो वो अपनी दोबारा से एस्टेब्लिश क्यों नहीं कर पाया, अपनी सिचुएशन, अपनी जो कंडीशन थी उसको मेंटेन क्यों नहीं कर पाया, इसके पीछे रीजन क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये बहुत बड़ा रीजन था, और इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए ये एक वरदान साबित हुआ, और इंडियन इंडस्ट्रीज इस टाइम पे बूम हो गई। बूम्ड अप मीन्स फ्लोरिश हो जाना। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यू नो वेरी वेल, 1914 से 1918 तक चली थी, अबाउट 5 इयर्स। इसका जो टाइम ड्यूरेशन था 5 इयर्स का था। तो इसमें क्या था, हम देखो यहाँ पे प्रोडक्शन, ऑफकोर्स प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, राइट, और यहाँ इंडियन पीपल जो है वो प्रोडक्शन वो हमारा एट द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, तो स्वदेशी प्रोडक्शन वो यूज भी करने लग गए थे। इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट क्या रहा, तो क्रिएटेड अ न्यू सिचुएशन, इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए एक न्यू सिचुएशन डेवलप की। न्यू सिचुएशन क्या थी बेटा, कि जो प्रोडक्शन मैनचेस्टर गुड्स, मैनचेस्टर में जो प्रोडक्शन हो रहा था, अब मैनचेस्टर ब्रिटिश मिल्स बिजी टू फुलफिल वार नीड्स ऑफ आर्मी। वार नीड्स क्या होती है? फॉर एग्जांपल, वार नीड्स में बहुत सारे जो आर्मी पर्सन्स होते हैं, जो जिनको आप सोल्जर्स कहते हैं, तो उनको रिक्वायरमेंट होती है, यूनिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, शूज की रिक्वायरमेंट होती है, जूट बैग्स की रिक्वायरमेंट थी, और हॉर्स सैडल्स की रिक्वायरमेंट थी। तो जो ब्रिटेन में जो मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज थी, मैनचेस्टर स्पेशली इंडस्ट्रियल हब था एक, तो वो पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो सारा का सारा वार नीड्स में जा रहा था, यानी कि वार नीड्स को फुलफिल करने में वो लगे हुए थे। और इंडियन इंडस्ट्रीज को क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत थी, आपको पता है कि 1917 तक तो ये भी अश्योर नहीं था कि जो एलाइड पावर है, एलाइड पावर में यूके था, यूएसए था, यूएसएसआर और फ्रांस, तो ब्रिटेन अलाइड पावर की तरफ था, और ये अश्योर नहीं था कि ये जीत जाएंगे, क्योंकि जर्मनी बहुत पावर में था उस टाइम, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन आफ्टर द एंट्री ऑफ यूएसए, जब यूएसए एंट्री करता है 1917 में, तो पूरी की पूरी जो वॉर होती है उसका तख्ता पलट हो जाता है, उसका रिजल्ट एकदम ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है। ओके, सो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। इंडियन इंडस्ट्रीज को भी ये ऑर्डर मिला था कि वो वार नीड्स को पूरा करे, यानी कि वार नीड्स को पूरा करने में हमारी हेल्प करे। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन इंडस्ट्रीज की, तो इंडियन इंडस्ट्री देखिए, जो ओल्ड इंडस्ट्रीज थी वो फिर से रिस्टार्ट हो गई, जिनको बंद कर दिया गया था, और जो न्यू इंडस्ट्रीज थी वो सेटअप हो गई, न्यू इंडस्ट्रीज एक्सिस्टेंस में आने लगी। ओके, और बाद में जो मैनचेस्टर इंपोर्ट था वो इंडिया में डेक्लाइन हो गया। इंडिया में उसका जो एक तरह से जो उसका एक तरह से डोमिनेशन था वो फिनिश हो गया, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर। आफ्टर वर्ल्ड वॉर कभी भी मैनचेस्टर अपनी वो वाली कंडीशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाया जो पहले थी, या जो कंडीशन उसको जो सिचुएशन वो पहले बनाए हुए था, तो वो सिचुएशन दोबारा से वो मेंटेन नहीं कर पाया। इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है वो आता है बेटा, सेकंड पार्ट में बेसिकली हम बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन आता है, एक तो लिविंग ऑफ वीवर्स और हैंडीक्राफ्ट पीपल के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है,
और इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं बेटा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, जैसे जो वीवर्स थे या जो इंडस्ट्रीज थी उनको कौन सी चीज थी जो टक्कर दे रही थी, या वीवर्स किसका इस्तेमाल कर रहे थे, वो फ्लाई शटल का इस्तेमाल कर रहे थे। फ्लाई शटल एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी और इसको बेसिकली हैंडलूम में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, फ्लाई शटल में क्या होती थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जो इसमें जैसे आपने देखा होगा कि जो थ्रेड का जब वीविंग होती है तो एक धागा इधर से आता है और एक धागा इधर से आता है, इस तरह से वीविंग होती है। तो जो हॉरिजॉन्टल थी उसको कहा जाता था वेफ्ट और जो वर्टिकल थी उसको कहा जाता था बार। ओके, आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये। और इसके बाद हम बात करते हैं बेटा इसमें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को चलते हैं एक बार थोड़ा सा उस पर, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स बूस्टअप हुई थी और ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी वो पोर्ट एरिया के आसपास थी। और पोर्ट एरिया के पास जो कि बड़े शहर जैसे मुंबई, कोलकाता, और आपकी बुक में एक मैप भी दिया गया है, इस मैप को भी ध्यान से देखो। ठीक है, इस मैप में भी दिखाया गया है कि किस तरह से जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का मैप आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी और इंडिया में बहुत कम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थे, बहुत कम लोग थे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। इफ यू टॉक अबाउट 1911 तो ओनली 5% पीपल वर एंगेज्ड एज लेबर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, एंड इफ यू टॉक अबाउट 1931 so only 10% people were engaged in large scale industries। और बाकी लोग क्या कर रहे थे, बाकी लोग भी तो कुछ काम कर रहे होंगे ना, तो बाकी लोग क्या काम कर रहे थे, बाकी लोग अपने घर में ही काम कर रहे थे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बूस्ट कर रहे थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से अपनी लिविंग कर रहे थे, अपने आप को सरवाइव कर रहे थे। ओके, सो वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज उसमें ऐसे थे जो रजिस्टर भी नहीं थी, तो आने जाने वालों को अगर वहां से गुजर गया लेकिन ये भी नहीं पता चलता कि इस घर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से कुछ हो रहा है या कुछ बनाया जा रहा है। राइट, इसके बाद अगर हम बात करें, हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन होता था और उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया था, इसीलिए वो ज्यादा टाइम तक चल पाए। इफ यू टॉक अबाउट स्पिनिंग बेटा, तो स्पिनिंग में क्या होता था कि स्पिनिंग का तो एक अल्टरनेट जो ब्रिटिशर्स के पास था, स्पिनिंग जेनी ने जो वीवर्स थे जो स्पिनिंग करते थे उनका एक जो काम था वो छीन लिया था, बट दे कुड नॉट कंट्रोल ओवर द हैंडलूम गुड्स। ओके, सो हैंडलूम गुड्स जैसे मैंने आपको बताया फ्लाइंग शटल का इस्तेमाल करते हुए जो पीपल थे, वीवर्स थे, वो क्लॉथ बनाते थे। वो 2 टाइप से क्लॉथ्स बनाते थे। फर्स्ट क्लॉथ वाज कोर्स क्लॉथ एंड सेकंड वन इज फाइन क्लॉथ। कोर्स क्लॉथ क्या होता था बेटा, कोर्स क्लॉथ मीन्स मोटे धागे का क्लॉथ। ओके, और फाइन क्लॉथ्स मीन्स फाइन क्लॉथ्स लाइक यू कैन से जैसे बनारसी साड़ी को काफी पॉपुलर थी, इसका अगर एग्जांपल ले, ओके, एंड बनारसी बलूचरी साड़ी एंड हैंडकरचीफ ऑफ मद्रास। सो ये पॉपुलर थे, इनका कोई अल्टरनेट नहीं था, मशीन से वो गुड्स बनाए नहीं जा सकते थे। सो इनकी ये इंडस्ट्रीज काफी बूस्ट हुई। और कोर्स क्लॉथ गरीब पुअर पीपल के लिए होता था, जबकि फाइन क्लॉथ रिच पीपल के लिए और रॉयल पीपल के लिए होता था। एट द टाइम ऑफ फेमाइन जो कोर्स क्लॉथ था उसका जो डिमांड थी वो फ्लैक्चुएट हो जाती थी, बट द डिमांड ऑफ फाइन क्वालिटी क्लॉथ्स नेवर फ्लैक्चुएटेड, बिकॉज कोई भी कितना भी अगर प्रॉब्लम में है, अगर कोई रिच पीपल है तो वो क्लॉथ्स को बाय करना नहीं छोड़ता है, वो ऑफ कोर्स क्लॉथ्स खरीदेगा। राइट, इसके बाद अगर इफ यू टॉक अबाउट एक क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वीवर्स एंड क्राफ्ट पीपल। उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था, देखिए वो लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते थे, वो लोग उनकी जो लाइफ थी वो बहुत हार्ड लाइफ स्पेंड करते थे, वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पिरियस नहीं थे। और उनकी जो फैमिली थी, कंप्लीट फैमिली विल डू वर्क ऑफ वीविंग एंड हैंडीक्राफ्ट। ओके, सो यहाँ पे हमने जो कंडीशंस देखी हैं इसमें बहुत से क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पेक्युलरिटी और फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो कि अनयूजुअल फीचर्स है उसके बारे में मैंने आपको बताया। एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बेटा एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ऑफ कोर्स मे बी आस्क्ड इन एग्जाम ऑल्सो। एंड इफ यू टॉक अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो हमने लार्ज स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कंपेयर किया, किस तरह से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी वो डेक्लाइन हो गई थी एट द टाइम ऑफ यूरोपियन इंडस्ट्रीज और उनका डोमिनेशन था, जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फ्लाई शटल को यूज करते हुए, यानी कि टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कम टाइम में, मीन्स लेस टाइम में और कम वर्कर्स के साथ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन वो कर देते थे।
ओके, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू टॉक अबाउट, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ज्यादातर अगर हम बात करें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जैसे अभी बताया कि मैंने बड़े बड़े शहरों में ही ज्यादातर पॉपुलराइज थी, जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो फ्लाई सेटल थी, ये अगर हम बात करें मद्रास की, मैसूर की या कोचीन की, बंगाल की, तो लगभग मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में 70 to 80% इन एरियाज में तो फ्लाई सेटल का इस्तेमाल होता था। ओवरऑल की अगर बात करें तो अबाउट 35% इंडस्ट्रीज में फ्लाई सेटल का इस्तेमाल होता था। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके वन लेक्चर इज ऑल्सो लेफ्ट, सो in that lecture we will discuss about market process, how advertisement took place at the time of industries। अब जो मार्केट है या उस टाइम मार्केट, उस टाइम की जो एडवर्टाइजमेंट, आपके एडवर्टाइजमेंट पे से किस तरह से डिफरेंट है। सो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है वो भी। सो आपको अच्छे से समझ में आ गया। एट द एंड आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव आंसर इन कमेंट सेक्शन। ओके, आर यू रेडी? Okay, which innovation helped the weavers in increasing the productivity and compete with mill sector? Okay, so आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, कौन सी इनोवेशन थी वो अकॉर्डिंग टू दिस लेक्चर। ओके, till then, thank you, have a good day ahead, keep watching।